دیکھیے ایک ریلائبل انپٹ حاصل ہوا تھا ہمیں کہ شہر شریف علاقے میں نوہار ولیج میں کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ ملٹنٹس جو جیش محمد تنظیم سے وابستہ ہے وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں اپنے انلیگل اسلحہ اور بارود کے ساتھ کسی دہشت وادی کارروائی کو انجام دینے کے لیے. یہ اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس، آرمی اور سی آر پی ایف کی جوائنٹ ٹیمز نے علاقے میں کارڈن کیا. کارڈن کے دوران ہی جو ہے بھاری ماترا میں فائرنگ جو ہے ہماری ٹیمز پہ ہوئی اور گرینیڈ داغے گئے اور انلیگل آرمز سے جو ہے ود دا انٹینشن ٹو کل ہماری ٹیمز پہ حملہ ہوا، جس کے جواب میں فائرنگ میں جو ہے اب تک ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ملٹنٹ جس کی آئیڈینٹی اسرٹین ہونی ہے وہ مارا گیا ہے اور اس سے جو ہے بھاری ماترا میں اسلحہ اور بارود ہمیں ریکور ہوا ہے. اس مسئلے میں جو ہے ایف آئی آر رجسٹر کر کے کیس رجسٹر کیا گیا ہے اور اس کی تفتیش جو ہے وہ بعمل لائی ہے. دیکھیے ہمیں جو اطلاع موصول تھی اس کے حساب سے ہم کامیاب ہوئے ہیں ملٹنٹس کو ایلیمینیٹ کرنے میں. باقی اس گروپ کے اور بھی کچھ سدسیہ ہیں جو علاقہ میں موجود ہے اور ان کو بھی جلد سے جلد دھر دبوچنے کی ہماری کوشش ہے اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہو. اس میں جو ہے بھاری ماترا میں ہمیں امونیشن اور ہتھیار جو ہے انلیگل ہتھیار ڈیڈ ملٹنٹ سے ریکور ہوئے ہیں اور پلس اس کے ساتھ ساتھ اور انکریمنیٹنگ مٹیریل وہ بھی ہمیں اس میں چلیے ایس پی بڑگام بات کر رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو ملٹنٹ ہے اس کا تعلق جیش محمد سے، ابھی اس کی شناخت ہونا باقی ہے. انکاؤنٹر سائٹ سے اسلحہ برآمد کرنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے اور ایس پی بڑگام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس علاقے میں انپٹس مل رہے تھے کہ یہاں پہ ملٹنٹس کی پریزنس ابھی بھی موجود ہے. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. آپ اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے ضلع بارہمولہ کے حوالے سے. ضلع بارہمولہ کے پٹن اور بارہمولہ میں آج نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے مختلف گھروں میں چھاپہ مار کارروائی کی اور وہاں پہ دستاویز جو ہے وہ برآمد کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. پہلے پٹن پلہالن میں ایک جگہ پہ انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی اور اس چھاپہ مار کارروائی کو دویندر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. پوری طرح کیا تفصیلات ہے میرے ساتھی ارشاد احمد ضلع بارہمولہ سے براہ راست میرے ساتھ جڑے ہیں. ارشاد NIA نے آج چھاپہ مار کارروائی کی، کیا کچھ تفصیلات ہے؟ ابھی کس طرح کی چھاپہ مار کارروائی ہے؟ کیا کوئی ڈاکیومنٹ برآمد کرنے کی باتیں بھی کہی جا رہی ہے؟ ملک کی بات کریں یہاں پہ آج قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج چھاپہ مار کارروائی کے دوران یہاں پہ کچھ علاقوں میں گئے، وہاں پہ دستاویز بھی برآمد کیے گئے. حالانکہ میں آپ کو بتا دیں چلو سب سے پہلے یہ پٹن پلال میں گئے، وہاں پہ جو غلام رسول واضح ہے وہاں کے ان کے گھر میں گئے. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیں چلو یہ جو غلام رسول واضح ہے اس کا جو لنک ہے وہ حریت کے ساتھ بتایا جاتا ہے. حالانکہ وہاں پہ جو کچھ دستاویز برآمد کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ہم ضلع بارہمولہ کے کنسپورہ کی بات کریں وہاں پہ شاہین احمد جو کہ ایکس ملٹنٹ رہ چکا ہے، آج وہ وہاں پہ جو ہے نجی اسکول چلا رہا ہے، وہاں پہ بھی اس کے گھر میں گئے. حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کے گھر میں جو ہے کچھ دستاویز برآمد کیے گئے. حالانکہ کئی علاقوں میں آج NIA کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران جاننا چاہوں گا جس طرح NIA کارروائی کر رہی ہے ڈرگس کے خلاف بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ NIA کی ٹیم نے کمر کس لی ہے اور جو بھی لوگ ڈرگس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. جیسے آج بارہمولہ میں جیسے طارق احمد کے گھر پہ جس طرح کارروائی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے اریسٹ بھی ہوئے ہیں ڈرگس معاملے میں. جی بالکل، اگر طارق کی بات کریں یہ جو پہلے رہتا تھا یہاں پہ خوش باغ بارہمولہ میں، جو مہیلا ونگ کی جو بی جے پی جو کارکن ہے یہاں پہ حلیمہ جی، اسی کے گھر میں یہ رہتا تھا. حالانکہ اس کے بعد جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سوتر کے ساتھ ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے جو پلوامہ میں اٹیک ہوا اس میں وہ ملوث تھا، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. آج اس کے جو گھر میں جو ہے چھاپہ مار کارروائی کے دوران کچھ دستاویز برآمد کیے گئے. یہ سنڈ بارہمولہ کا رہنے والا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے یہاں پہ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے خوش باغ علاقے جہاں پہ جو ہے مہیلا مورچہ کی جو یہ حلیمہ جی کارکن جو ہے، جی بالکل، جہاں پہ حلیمہ جی رہتی ہے، حالانکہ اس کے گھر میں یہ رہتا تھا. آج باضابطہ طور پر جو ہے NIA کی ٹیم وہاں پہ پہنچی. حالانکہ اس وقت بھی لگاتار سرچ جاری ہے. سوتر کے مطابق وہاں پہ جو ہے کچھ ارشاد کیا کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے آج جہاں پہ بھی چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے؟
बिल्कुल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, जो ये बीजेपी की जो लीडर है यहाँ पे, इसके घर में ये तारिक अहमद रहता था। हालांकि इसका कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ साथ कुछ दस्तावेज यहाँ पे जो है रिकवर किए गए हैं। तो कौमी तहकीकाती एजेंसी ने वो अपने साथ ही लिए हैं। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, आज कई इलाकों में जो ये गए, इसके साथ साथ अभी भी जो है छापामार कार्रवाई जो वो जारी है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनआईए की टीम ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ एरियाज में आज छापामार कार्रवाई की है और वहाँ पे दस्तावेज जो है वहाँ से हासिल किए गए हैं। और इन कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं चाहे देविंदर की हम बात करें या ड्रग्स माफिया के खिलाफ बात करें, कहीं ना कहीं उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा है। आज की लिंक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जिला बारामूला में कार्रवाई जो है वो बराबर जारी है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से, जहां एक तरफ अब सरकार ने कोशिश की है कि यहां पे हाई सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उनको खोला जाए और बच्चों को कहा गया कि वो स्कूलों की तरफ आए। कोविड के बीच में अब इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जहां हम एग्जामिनेशन की बात करें, पहले ही स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया था कि कई बच्चों को दूसरे क्लासों में अब एडमिशन मिल सकती है, जिस तरह वो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल सेट किया गया था, या जिस तरह चाहे सब्जेक्ट्स वाइज की हम बात करें, जिन बच्चों के 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पास हैं उनको अगले क्लास में अब एडमिशन मिल सकती है, और जिनको कोई सब्जेक्ट पास नहीं है या सिर्फ एक सब्जेक्ट पास है उनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया था। और आज इसी हवाले से बायएनुअल 12वीं जमात के जो एग्जामिनेशन आज से शुरू हो गए हैं। प्रोटोकॉल सेट किया गया है, SOPs को ख्याल रख के एग्जामिनेशन किए गए। हमारे साथी फिरदौस अहमद ने मुख्तलिफ एग्जामिनेशन सेंटर्स का रुख किया और वहां पे जिम्मेदारों के साथ बात की। क्या कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में उन्होंने पाया, क्या कुछ जिम्मेदारों ने कहा, आए आपकी नज़र करते हैं। जो भी हमारे जो कोविड के मुतालिक जो हमारे जो भी मेजर्स लेने हैं, जो भी हमारी गाइडलाइंस है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे और हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप गेट से एंटर होते ही आपने देखा कि आपको यहाँ पे सैनिटाइज़ किया गया। सैनिटाइज़र्स हमने जो मेन गेट पे वहाँ पे ही रखे हैं। और यहाँ पे जहाँ भी आप कहीं वाशरूम्स में जाएंगे, जहाँ भी कहीं हमारे पास वाशरूम में है, ईच एंड एवरी वाशरूम इज़ हैविंग दिस हैंड वॉश। हमने सब जगह रखे हैं हैंड वॉशेस भी, चाहे वो स्टूडेंट्स के वाशरूम है चाहे वो स्टाफ के वाशरूम्स है। तो यहाँ पर हमने जब से ही कोविड का स्टार्ट हुआ था तब से भी हम बहुत देर तक आते हैं, तो ये यहाँ पहले से ही शुरू हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो भी गाइडलाइंस है हमें डिपार्टमेंट से आए, वो तो हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। दूसरा बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे हमने ये सर्कल्स बनाए हैं। यहाँ पे परसों नीट का एग्ज़ाम था, उससे पहले यहाँ पे फायर सर्विस का भी एग्ज़ाम था, और परसों संडे को यहाँ पे सुकास्ट का भी रिटन टेस्ट लिया जा रहा है। तो हमें उसके लिए बार बार हम पूरा इसको सैनिटाइज़ करते हैं, सीट्स को सैनिटाइज़ करते हैं, रूम्स को करते हैं। फ्यूमिंग हमने पहले की इसमें वो म्यूनसिपलिटी को कह के हमने पूरा ये सब मेजर्स उठाए। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अटेंडेंस, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर हमारे 85 बच्चे जो है परसेंट इसमें एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। कुछ बच्चों का पता नहीं वो बीमार होंगे या कुछ पॉजिटिव होंगे, वी डोंट नो अबाउट देम। लेकिन जो भी मेरे पास इस वक्त जो मैंने इंस्पेक्शन किया अपने सेंटर का, उसमें हमारा 85 अटेंडेंस है। चलिए नाज़रीन, एग्जामिनेशन के हवाले से आपको बताएं तो 12वीं जमात के बायएनुअल के एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी वैली की हम बात करें 206 एग्जामिनेशन सेंटर्स मुकर्रर किए गए हैं और तकरीबन 7000 के करीब जो बच्चे हैं वो आज एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं। अगर हम टोटल बच्चों की बात करें जो जिनका रीअपेयर आया था या जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे, वो 39,000 के करीब थे। मगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको अगले क्लास में प्रमोट किया गया था, उसके बाद ऐसे बच्चे जिनका कोई सब्जेक्ट पास नहीं हुआ था या एक सब्जेक्ट पास हुआ था, वो बच्चे 7000 के करीब रहे थे जिनको एग्जामिनेशन में बैठना पड़ा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा टूरिज्म के हवाले से, महकमा सयाहत के हवाले से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ की
इकोनॉमी की टूरिज्म डिपार्टमेंट। मगर अगर हम बात करें साल 2019 5 अगस्त से लेकर यहाँ का टूरिज्म सेक्टर टोटली बंद बैठा हुआ है, टोटली ठप हुआ है, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। यहाँ का ट्रांसपोर्टर भी मुतासिर हुआ, यहाँ का हाउस बोट ऑनर भी मुतासिर हुआ, हर एक तबके के लोग मुतासिर हुए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, जो बेरोजगार हो गए, जो फाका कशी के लिए मजबूर हो गए। हमारे साथी इरफान फाजिल ने इस हवाले से कई लोगों के साथ बात की, ट्रांसपोर्टर के साथ बात की, हाउस बोट के ऑनर्स के साथ बात की, या टूरिज्म से जुड़े जो लोग थे उनके साथ बात की कि अब टूरिज्म के हवाले से सरकार को इकदाम उठाने की जरूरत है। जहां एक तरफ कोविड-19, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म के हवाले से भी अब बातें हो रही है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि दिल्ली से कुछ लोग आए थे जिन्होंने पहलगाम का रुख किया, जिन्होंने गुलमर्ग का रुख किया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत ही, SOPs के तहत ही लोग जो है वो टूरिस्ट स्पॉट का रुख कर सकते हैं, वहां से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, मगर कोविड के बीच में इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या कुछ लोगों ने कहा हमारे साथी इरफान फाजिल से, आइए आपकी नज़र करते हैं। देखिए कितनी गाड़ियां बैठी है अभी, तो ये अभी ये जो महीना था, हम इस महीने में ज़्यादातर फॉरेनर टूरिस्ट आता था यहाँ पे। तो अभी ये जब जो भी इतनी गाड़ियां हैं इधर, ये सब पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हर किसी जगह पे होती थी। तो पिछले 2019 3 अगस्त से टिल अभी तक हम पूरे बैठे हुए हैं इधर, कोई कमाई नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से इंश्योरेंस हमारा ख़त्म हो गया, ऊपर से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सब खत्म हो गए। तकरीबन कितने ड्राइवर साहिबान होंगे, कितने फैमिलीज है जो इसके साथ जुड़ी है यहाँ? मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए अभी मेरे ख्याल से टेम्पो ट्रेवल, ये जो ऑल कश्मीर टेम्पो ट्रेवल एसोसिएशन है, यहाँ पे कम से कम 200 टेम्पो है, 150 से लेके 200 टेम्पो तक। यहाँ पे पहले 2-3 साल पहले भी जो भी हो, यहाँ पे मतलब क्राउड अच्छा होता था, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते थे। अभी पता नहीं क्या हालत हो गया है यहाँ पे, लाइक पूरा हाउस बोट खाली मिल रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे वो माहौल नहीं है जहाँ पे जब पहले होते थे हमें यहाँ पे। इतना ज़्यादा सीरीन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बेरोजगारी, एंड शिकारा खाली है, हाउस बोट खाली है। आपने देखा कोरोना वायरस की वजह से अब जो SOP गाइडलाइंस है, अगर वो फॉलो करें तो क्या टूरिस्ट को आना चाहिए वापस कश्मीर? हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए। टूरिस्ट अभी SOP के हिसाब से थोड़ा चेंजेस लाके, थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करके, थोड़ा मतलब बिना थोड़ा कुछ नए के साथ फिर से शुरू होना चाहिए लगता है, क्योंकि ना बहुत लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉय है। यहाँ पे बेचारा देखो अभी यहाँ सारे खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा आना चाहिए टूरिस्ट लोगों को, ये बनना चाहिए। पर बात करने के बाद ये ज़रूर पता चला कि जिस तरीके से सरकार ने बाहर के स्टेट्स को लेकर टूरिस्ट को परमिशन दे दी है विद SOP गाइडलाइंस, वो जा सकते हैं ताकि लोगों का रोज़गार चले। तो यहाँ के लोगों का भी मानना है, जो तबका इसके साथ जुड़ा है, चाहे शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, इनका भी मानना है कि अगर सरकार परमिशन दे टूरिस्ट को यहाँ आने की विद SOP प्रॉपरली, SOP गाइडलाइंस के ज़रिए, तो हम भी वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो एक साइड से अगर कंटिन्यूसली बात करें, शिकारा का खर्चा है, हाउस बोट की मेंटेनेंस है, लाखों रुपया का पैसा, ये आएगा कहाँ से, जबकि बच्चों के पास फीस नहीं है इस वक्त देने के लिए। एक साइड से स्कूल भी खोले गए हैं, दूसरे साइड से अगर हम देखें तो जो तबका ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब उन्होंने एक डाइवर्जन ले लिया है। यानी उनका मानना है कि मजदूरी, पटरी पर अपना रेड़ा लगा के गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। यानी एक ऐसे कल्चर हेरिटेज से रेलेवेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म बैकबोन इंडस्ट्री कश्मीर की, वो खस्त हो चुकी है। सरकार ने आज तक बड़े बड़े दावे तो बुलंद किए हैं, मगर ज़मीनी सतह पर वो पैकेज गया कहाँ, वो पैसा गया कहाँ? जबकि लोगों का ये ज़रूर मानना है कि 1000 रुपये से आज एक महीने में 5 लोगों की फैमिली नहीं चल सकती है। और हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि जिन लोगों की भी फरियाद है, सरकार इस पर गौर करेगी और कश्मीर के बैकबोन इंडस्ट्री यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को, हाउस बोट इंडस्ट्री को, शिकारा वालों की इंडस्ट्री को बचाएगी, ताकि आने वाले टाइम में कश्मीर में डल झील के साथ साथ ये ज़िंदगी आगे बढ़े और इनकी ज़िंदगी के साथ साथ कई लोगों का चूल्हा जले। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, डल लेक कश्मीर। चलिए नाज़रीन, आपने सुना, लोगों ने बात की किस तरह यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हो रही है और लोगों को कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के साथ
जो तादाद है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, चाहे ट्रैवलर की बात करें, ट्रांसपोर्टर की बात करें या बाकी जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सब के सब अभी कह सकते हैं बेकार हुए हैं, फाका कशी पे मजबूर हो गए। सरकार को इस हवाले से इंतजामात करने की ज़रूरत है, उनके हवाले से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो कई सालों से ये इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। जिस तरह इल्ज़ामात लगा रहे यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनका कहना है कि सरकार इसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मेवा है वो बाहर की मुख्तलिफ मंडियों तक नहीं जा सका और अच्छा खासा जो रेट उनको नहीं मिल रहा है। साल 2019 की बात करें, 5 अगस्त के बाद यहाँ का मेवा जो है बाहर की मंडियों तक नहीं जा सका। हालांकि यहाँ की मंडियों तक भी पूरी तरह नहीं जा सका क्योंकि हालात ख़राब हुए, यहाँ पे सब कुछ बंद रहा, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब इस साल सीज़न आ चुका है, मेवा तैयार है। लोगों ने कहा कि सरकार को अब इस साल कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ का मेवा बाहर की मुख्तलिफ मंडियों में जाए, यहाँ की मंडियों में जाए और एक अच्छी खासी रेट, अच्छी खासी रकम जो है वो बाग मालिकान को मिले, क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको काफ़ी रुपया जो है वो खर्च करना पड़ता है। हमारे साथी शमीम अहमद के साथ हंदवारा के मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने बात की इस इंडस्ट्री के हवाले से। क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। ऐसे छकान ब्रोट छकान 4 दवा यो रोजा फिटस मत पत क्या रेट तम वक्त आज खर्चा ज्यादा है, दवा छकान 12-13 तम बावजूद सब माल बर्बाद गम पे 100 रुपये पीट ग बाग वलिस खास पन पीट कम अज कम 3.5-4 तैयार बह पन कि मे गई 3 वरी आज 2000 पेट अत खर्चे तस वापस कहें ये दवा लगा 2 लाख रुपये यह तम बावजूद माल बर्बाद पे 100 रुपये पीट ग अत फी पेट लगान 200 रुपये गाट दवा बिल्कुल डुप्लिकेट बिल्कुल डुप्लिकेट कह एक्शन अत तम दवा मे समझ कह आम लूक वन फलन दवा खलन स्केप मगर मे गो यह सबूत बेबस मज युत मे बेब छो अम खज 99% स्केप 100% साफ तोतान बेब क्या अत गवाह 5 नफर छकन वल सत बेब छोक अत गई रिएक्शन इथे कन सारे बाग वाल दफन बिचार गम अत पे चलान 95% 5-10% मुलजिम लूक अक्सर 95% ये पे चलान रोजगार मगर बिचार वन जीरो। चलिए नाज़रीन, इस इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों ने कहा महकमे हार्टिकल्चर को, यहाँ की सरकार को कि अब सरकार को इस इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करने और ख़ासकर जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी देखरेख करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी तादाद में ऐसा भी मेवा है जिस पे स्कैब लगा हुआ है। लोगों ने कहा कि ये स्कैब दवाइयों की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो गैर मियारी हैं। सरकार इन दवाइयों की पूरी तरह देखरेख या जांच पड़ताल नहीं कर रही है। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से। सरकार ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, जहां पे भी हम साफ सफाई की बात करें या ओपन डेफिशिएंसी को खत्म करने की बात करें तो सरकार ने नारा दिया। अब ये स्कीम तकरीबन क्लोज होने को है, अब ये खत्म होने को है, मगर जिस तरह अब पैसा वागुजार किया गया था, जिस तरह इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी, पूरी तरह ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। टंगमर्ग का इलाका, वहां पे म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने 2 शौचालय तामीर किए थे, क्योंकि लोगों को कहीं मुश्किलात ना हो, लोग कहीं बाहर जो है पेशाब के लिए ना जाए, इस वजह से 2 जगह पे वहां पे शौचालय तामीर किए गए। 2 साल पहले ये बनाए गए थे, कसी रकम इन पे खर्च की गई है, मगर आज तक इनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। हमारे साथी इशफाक अहमद ने जब वहां के अफसरान से बात करने की कोशिश की तो जवाब यही मिला कि आज हम कोविड-19 की वजह से बिजी हैं, अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं इस हवाले से खदशात का इजहार किया। लोगों ने कहा कि एक अच्छा कदम था, यहाँ पे बहुत सारे इलाकों से लोग आते हैं, उनको मुश्किलात होती है, तो इनको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत थी। हमारे साथी इशफाक अहमद से वहाँ कुछ लोगों ने बात की, क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। कि ये जो यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी का बाथरूम बना था, ये खुश आमद बात थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कदम उठाया था और ये इसको बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम यही है, यहाँ के जो लोग हैं या टूरिज़्म जो यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, ये टंगमर्ग जो है ये गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, यहाँ से पहले टूरिस्ट को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ता है। तो टूरिस्ट की बात भी एक है और दूसरी तरफ यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब से ये बंद पड़ा है, जब से ये बना हुआ है, तब से ये बंद ही पड़ा है, जबकि ये पूरा कंप्लीट इस वक्त में है। बाथरूम बनाया लक्ष लोग ये दुनिया फैला पे बेरन तल बचन तल ग पेशाब कर बाथरूम बंद
ये कुछ यह लगा सो तो कोता टाइम को बने थे आता तो वही पैसे अच्छा हाँ तो वो क्या तुम डिमांड जमा जो कुछ यह लगा सो जुबान चलिए, नारा स्वच्छ भारत अभियान का जहां सरकार ने, मरकजी सरकार ने लगाया था, यहां पे जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और लोगों तक पहुंचने की बात कही गई थी। खासकर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, वहां पे लोगों को इस हवाले से फ़ायदा देने की बात कही गई थी, मगर इस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों के खदशात है। अगर हम गाँव की बात करें, जहाँ कहीं भी शौचालय बनाया गया था वो पूरी तरह बना ही नहीं, या उन लोगों को पैसा दिया गया नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम भी लोगों ने लगाए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न लोग हैं, उनको इस हवाले से शायद देखने की जरूरत है, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। खरबों रुपए का मामला है जहां पे लोग अब इल्जामात लगा रहे हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, महकमे R&B के हवाले से, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि हाल दिनों में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो मैग्डमाइजेशन है या रोड उसको ठीक करने की बात कही जा रही है, तो 80% के करीब ऐसे रोड्स हैं जिनको ठीक किया गया है। चाहे हम PMGSY के तहत की बात करें या जो R&B डिपार्टमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो करते रोड्स ठीक करते हैं उनकी बात करें, मगर कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं और लोग इस हवाले से जो है सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह सरकार वादे कर रही है, जिस तरह कागजों में अब बयानात दिए जा रहे हैं, ज़मीनी सतह पे इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कानिसपोरा से लेकर सिंहपोरा तक, कानिसपोरा बारामूला का इलाका, कानिसपोरा से लेकर सिंहपोरा तक की अगर हम बात करें, रोड की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लोगों ने कई बार इसको महकमे की नोटिस में लाया, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, मगर इस हवाले से कोई खातिर का जवाब उनको नहीं मिला। वहाँ पे रोड इतना खस्ता है कि गाड़ियों में चलने में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथी इरशाद अहमद से कई लोगों ने बात की इस हवाले से, क्या कहना है लोगों का, आपकी नज़र करते हैं। ड्राइवर हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमारी गाड़ियों का बुरी हालत हो गया। सबसे पहले हमने इससे पहले भी आपको बताया था, तो हमारा मसला हल कीजिए, ये नहीं हुआ सर। तो उसके बाद भी हम DC साहब से गुजारिश करता है कि मेहरबानी करके हमें ये रोड ठीक करके दे दे। पूरे नहीं हुए हमारे साथ, खासकर ड्राइवर लोगों के साथ वादा नहीं पूरे हुए, तो हम अब गुजारिश कर रहे हैं कि DC साहब को कि हमको ये रोड ठीक करके दे। अगर कोई खुदा ना खास बीमार होता है तो आप कैसे टैकल करते हैं, आप कैसे हॉस्पिटल उसको लेते हैं? सर हमें लगता है कम से कम यहाँ से बारामूला तक 4 घंटे जी पेशेंट उतारने। जी तो अगर जो ज्यादा पेशेंट नाजुक होगा उसका डेथ गाड़ी में ही हो जाएगा। जी अब हम आप लोगों की गुजारिश करता हूँ कि अब हमके रोड ठीक करके दीजिए, वरना हम खुद करेंगे ठीक। कानिसपोरा सिंहपोरा के लोगों की शिकायत, उनके इल्जामात हमारे साथी इरशाद अहमद ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर GN इतू तक पहुँचाए कि ये रोड क्यों ठीक नहीं हुआ, इस पे मैग्डमाइजेशन या इस पे बाकी काम जो करने थे वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। DC बारामूला का क्या कहना है, आए आपकी नज़र करते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी, जो सिंहपोरा रोड है ये बेसिकली CRF में है और CRF में पिछले कई महीनों से फंडिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनरेबल LG साहब ने जब रिसेंटली बारामूला का दौरा किया तो ये चीज़ मैंने उनकी नोटिस में जब लाई तो मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बड़ा सीरियसली इसको सुना और हमें जो है ये उम्मीद है कि वो, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये फंडिंग वहीं से आनी है, तो उन्होंने हमें वादा दिया है कि वो इसमें इंटरवेंशन करके फंडिंग का कोई ना कोई जो है सहारा निकालेंगे। लेकिन मीनवाइल मैंने जो हमारे यहाँ R&B के लोग हैं, मैंने उनको बता दिया है कि जो इसमें इमीडिएटली फ़िलहाल कुछ पैच वर्क करना हो, बाकी चीज़ें करनी हो, उसके लिए जो हमने गवर्नमेंट को लिखा है, चीफ इंजीनियर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रोजेक्शन करी है कितनी रिक्वायरमेंट है, जो ही वो फंडिंग आई हम एक टाइम बाउंड मैनर में इसको जो है कम से कम पैच वर्क जो है करने का इंतजाम करेंगे। चलिए, DC बारामूला की बात आपने सुनी, इस रोड को ठीक किया जाएगा, लोगों को की जो दुश्वारियां हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, इस तरह की बातें कही जा रही है। जिस तरह बारामूला की हम बात करें तो कई इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इल्ज़ामात लगते हैं कि लोगों को मुश्किलात हैं और इनका इजाला करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। चलिए नाज़रीन, बात डेवलपमेंट की हो रही है, रोडों की खस्ताहाली की हो रही है, तो अच्छू गडूल कोकरना के लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने शिकायत की कि जो रोड उनके इलाके की तरफ जाता है वो काफ़ी खस्ता है, लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां आ रही है। अगरचे मामले को कई बार महकमे R&B की नोटिस में लाया गया है, इंतज़ामिया की नोटिस में लाया गया है, मगर इस रोड पर काम नहीं हुआ है, लोगों की सुनवाई कहीं हुई नहीं है। हमारे साथी पीर मुजफ्फर के साथ वहाँ के लोगों ने इस हवाले से बात की, क्या कहना है इनका, आपकी नज़र करते हैं। हमारा मसला ये है कि हमें इधर
सड़क भी नहीं थी। अब प्रोजेक्ट वालों ने सड़क लाई तो पानी ही ख़त्म हो गया। जो पानी ख़त्म हो गया तो किसी भी महकमे में हम जाते हैं वोट लेने के लिए, हमें दुनिया भर के आ जाते हैं, भाई हमें वोट दे दो। हमारे घरों में बैठक लगाते हैं, जब वोट जीत कर किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो हम किसी महकमा के पास जाते हैं तो संतरी कहता है साहब इधर आइए नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम आपकी वसाजत से ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह की फजल से और आपके इस ताउन से अगर हमें पानी की और इस सड़क की राहत मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारा रोड भी नहीं है, इधर कदल एक होना चाहिए पुल जो जिससे हम क्रॉस कर सकते पानी।